کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جس چیز سے مطلب سب سے زیادہ امید تھی وہ اچانک رک گئی ہو؟ جیسے کوئی لیکھک ہو اور اسے لکھنے کے لیے الفاظ ہی نہ مل رہے ہوں، یا کوئی کلاکار جس کی پریرنا ہی سوکھ گئی ہو۔ ایک خالی پن ہے نا، ایک خاموشی۔ ہاں، ایک ایسی خاموشی جو انسان کو اندر سے پریشان کر دیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی گہری خاموشی اور اس کے بعد جو تسلی ملی اس کی ایک بے حد خوبصورت کہانی پر بات کریں گے۔ یہ کہانی قرآن کی ایک چھوٹی لیکن بہت بہت اثردار سورہ الضحیٰ کے بارے میں ہے۔ آج ہم اس سورہ کی جس تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سورہ کیوں اور کن حالات میں نازل ہوئی۔ اور ہمارا مقصد ایک طرح سے یہ سمجھنا ہے کہ کیسے یہ سورہ نبی صلی اللہ کو پہلے تو تسلی دیتی ہے، ہاں، پھر انہیں گزرے ہوئے احسانات یاد دلاتی ہے، اور آخر میں ایک بہترین مستقبل کی خوشخبری بھی دیتی ہے۔ تو چلیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک ٹھہراؤ سے، وحی یعنی آسمانی پیغام کا آنا کچھ وقت کے لیے رک جاتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹھہراؤ نہیں تھا۔ نہیں، ہمارے پاس جو روایتیں ہیں ان میں تو 12 دن سے لے کر 40 دن تک کا ذکر ملتا ہے۔ ذرا سوچئے، جس پیغام پر آپ کی پوری زندگی کا مقصد ٹکا ہو وہ اچانک خاموش ہو جائے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب نبی صلی اللہ بہت زیادہ پریشان اور غمگین ہو گئے تھے۔ اور دیکھیے، یہ پریشانی صرف اندرونی نہیں تھی، باہر سے بھی اس آگ کو ہوا دی جا رہی تھی۔ اچھا۔ ہاں، جو لوگ مخالف تھے انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور وہ ایک پڑوسی کا واقعہ بھی ہے نا؟ جی، خاص طور پر ابو لہب کی بیوی ام جمیل، وہ ان کی پڑوسی بھی تھیں، اور انہوں نے بہت تکلیف دہ تانا دیتے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اف، ایسے ماحول میں تو یہ شک ہونا قدرتی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ بالکل، جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بھاری بوجھ تھا۔ اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب وہ خاموشی ٹوٹتی ہے اور وہی دوبارہ آتی ہے تو وہ ڈانٹ یا ناراضگی کے ساتھ نہیں آتی، نہیں، بلکہ بے پناہ محبت اور تسلی کے ساتھ آتی ہے۔ اور تو اور اس خاموشی کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ اچھا، وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ بالکل۔ سورہ کی شروعات میں 2 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا ایک گہرا مطلب ہے، جیسے دن اور رات کا آنا جانا اللہ کی ناراضگی یا خوشی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے نا۔ نہیں، وہ تو ایک نظام کا حصہ ہے۔ ہاں، وہ دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہے، ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ ویسے ہی وحی کا آنا اور رکنا بھی ایک مقصد کی وجہ سے تھا۔ مطلب یہ ٹھہراؤ ضروری تھا، یہ کوئی سزا نہیں تھی بلکہ ایک ضرورت تھی۔ ہاں، تفسیر سے یہی سمجھ آتا ہے۔ دیکھیے، وحی کا نازل ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بھاری اور کہہ سکتے ہیں تیز روشنی کی طرح تھی۔ نبوت کے شروعاتی دور میں جسم اور روح کے لیے اسے لگاتار برداشت کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے بیچ میں یہ ٹھہراؤ دیا گیا تاکہ سکون مل سکے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے دن کی تیز روشنی اور کام کے بعد رات کا سکون ملتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے تیاری کا دور تھا تاکہ آگے آنے والے پیغامات کے بھاری بوجھ کو برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے۔ تو یہ خاموشی ناراضگی کی نہیں بلکہ رحمت کی نشانی تھی۔ تو اس ٹھہراو کے بعد جو پیغام آیا وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ کے دل کو تسلی دینے والا تھا۔ یقیناً بہت طاقتور رہا ہوگا۔ اس خاموشی کے بعد جو پہلا پیغام آیا اس نے سیدھے سیدھے کس ڈر کو دور کیا؟ اس نے سیدھے اسی ڈر کی جڑ پر وار کیا۔ پہلی اور سب سے سیدھی بات کہی گئی، ماں ودعک ربک وما قلی، یعنی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ ایک ہی جملے میں سارے شک دور کر دیے۔ ہاں، یہ ایک ہی جملے میں ان تمام شک شبہات اور باہر سے دیے جا رہے تانازنی کا جواب تھا۔ یہ اعلان تھا کہ یہ رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، اور یہ خاموشی ناراضگی کی وجہ سے نہیں تھی، نہیں بلکہ ایک حکمت کی وجہ سے تھی۔ ٹھیک ہے، تو موجودہ پریشانی اور ڈر کو تو دور کر دیا گیا، لیکن سورہ یہی نہیں رکتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بعد تو بھوشیہ کے لیے ایک بہت بڑی امید دی گئی ہے، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ اور یہ اس وقت کہا گیا جب حالات بہت مشکل تھے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی بھوشیہ وانی تھی۔ اس وقت کے حالات دیکھیے، مکہ میں مٹھی بھر لوگ اسلام لائے تھے، ہر طرف سے مخالفت تھی اور کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مطلب اسلام کی شمع مکہ کی وادیوں میں ہی ٹمٹما رہی تھی، اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف سے طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے وعدہ کیا کہ گھبراؤ مت، آنے والا ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال
पिछले वाले से बेहतर होगा। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा असर बढ़ता ही जाएगा। जी। 1 मिनट रुकते हैं। हाँ। उस वक्त जब उनके साथ गिनती के लोग थे और चारों तरफ दुश्मन, तब ये सुनना कि आने वाला हर दौर बेहतर होगा, ये तो आज के जमाने में किसी स्ट्रगलिंग स्टार्टअप को ये बताने जैसा है कि वो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। सही बात है। इस पे यकीन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान रहा होगा। बिल्कुल। और ये वादा सिर्फ दुनिया की कामयाबी तक ही महदूद नहीं था। इसका एक और गहरा मतलब भी है। वो क्या? कि आखिरत में यानी परलोक में जो मर्तबा आपको मिलेगा वो उस मर्तबे से भी बहुत ज्यादा बढ़कर होगा जो दुनिया में आपको हासिल होगा। अच्छा। एक रिवायत में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो तमाम फतूहात पेश की गई जो उनके बाद उनकी उम्मत को हासिल होने वाली थीं, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि ये सब तो है, लेकिन जो हमने तुम्हारे लिए आखिरत में तैयार कर रखा है वो इससे भी कहीं बेहतर है। और फिर एक तीसरा वादा आता है जो इन सबसे ज्यादा मतलब जाती लगता है। हाँ। वले सौफ यूती का रब्बु का फतरदा, यानी और अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। बेहतर होगा एक बात है, लेकिन तुम खुश हो जाओगे, ये तो सीधे दिल पर असर करता है। बिल्कुल। उस वक्त के मुश्किल हालात में इस वादे का पूरा होना तो लगभग नामुमकिन लगता होगा। हमारी जानकारी में इस बारे में क्या मिलता है कि ये कैसे और कितनी जल्दी पूरा हुआ? ये वादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही हैरत अंगेज तरीके से पूरा हुआ। सिर्फ 23 साल में? हाँ, सिर्फ 23 साल के छोटे से अरसे में पूरा अरब दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से लेकर पश्चिम तक एक कानून के तहत आ गया। ये सिर्फ जमीनी फतह नहीं थी, ये दिलों की फतह थी। बिल्कुल। जिन लोगों के अकीदे, अखलाक और रहन सहन में सदियों से बिगाड़ था, उनमें एक ऐसा इनकलाब आया जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। और उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं? नहीं। इस्लाम की तहरीक एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बड़े हिस्सों तक फैल गई। तो ये वादा अपनी पूरी शान के साथ पूरा हुआ कि अल्लाह ने उन्हें इतना दिया कि वो राजी हो गए, खुश हो गए। तो भविष्य के इतने बड़े बड़े वादों के बाद सूरा का रुख अचानक बदलता है और वो ध्यान अतीत की तरफ ले जाती है। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, जैसे ये कहा जा रहा हो कि अगर तुम्हें मेरे आने वाले वादों पर शक है तो जरा अपना अतीत याद करो, हम तो हमेशा से तुम्हारे साथ थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहाँ जो बात हैरान करती है वो ये है कि अल्लाह अपनी मेहरबानियों को याद दिलाने के लिए 3 खास बातों का जिक्र करता है। उनकी जिंदगी के सबसे नाजुक दौर। हाँ, पहली है यतीमी का दौर। अलम यजिद का यतीमन फआवा। क्या उसने तुमको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया? जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया था। 6 साल की उम्र में वालिदा का भी इंतकाल हो गया, मगर अल्लाह ने कभी उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा। पहले दादा ने पाला? हाँ, पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और कहते थे कि मेरा ये बेटा एक दिन दुनिया में बड़ा नाम पैदा करेगा। और उनके बाद चाचा अबू तालिब ने? जी, उन्होंने उनकी ऐसी परवरिश की कि उन्हें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि नबूवत के बाद जब सारी कौम दुश्मन हो गई, तब भी 10 साल तक वही उनकी हिफाजत की ढाल बने रहे। तो ये तो एक पैटर्न की तरह लग रहा है। हाँ। जैसे अल्लाह ये नहीं कह रहा कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की थी, बल्कि ये कह रहा है कि याद करो कि मदद मिलना कैसा महसूस होता है। बहुत खूबसूरत नुक्ता है ये। शायद इसी एहसास को आगे की हिदायतों से जोड़ा जाएगा। तो पहला सहारा यतीमी के दौर में मिला। इसके बाद जो दूसरी नेमत याद दिलाई गई वो जाहिरी मदद से ज्यादा एक अंदरूनी रहनुमाई के बारे में है ना? एकदम सही। दूसरी याद दहानी थी हिदायत मिलने की। ववजतक ज़ाल्लन फहदा। और तुम्हें नावाकिफ राह पाया और फिर हिदायत बख्शी। यहाँ ये जो लफ्ज है ज़ाल्लन, ये बहुत अहम है और इसे समझना जरूरी है। इसके क्या मतलब है? अरबी में इसके कई मतलब होते हैं। गुमराही, रास्ता ना जानना, खोया हुआ होना। लेकिन यहाँ इसका मतलब गुमराही हरगिज नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु की जिंदगी बचपन से ही पाक साफ थी। वो कभी भी अपने समाज की बुत परस्ती या शिर्क में शामिल नहीं हुए। कभी नहीं। तो यहाँ इसका मतलब है नवाकिफ होना, यानी आपको ये तो पता था कि ये रास्ता गलत है, लेकिन सही रास्ते की तफसील, किताब और ईमान की बारीकियां वो नहीं मालूम थी। और अल्लाह ने आपको वो सारा इल्म देकर हिदायत दी। जी। और तीसरी नेमत तो पहले ठिकाना मिला, फिर रहनुमाई मिली, और फिर तीसरी नेमत माली तौर पर मजबूत करने की थी। ववजदा का आइलन फअगना, यानी और तुम्हें नादार पाया और फिर मालदार कर दिया। आपको अपने वालिद से विरासत में बहुत कम मिला था। कितना? कुछ रिवायतों के मुताबिक सिर्फ एक ऊंटनी और एक लौंडी,
लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह, जो मक्का की एक बहुत इज्जतदार और कामयाब ताजिर थी, उन्होंने आपकी ईमानदारी और काबिलियत को पहचाना। हाँ, और अहले आपको तिजारत में शरीक किया और फिर आपसे शादी कर ली। आपकी अपनी मेहनत और काबिलियत से तिजारत को बहुत फायदा हुआ और अल्लाह ने आपको खुशहाल कर दिया। तो ये तीनों बातें याद दिलाई जा रही हैं कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह की मदद और मेहरबानी हमेशा तुम्हारे साथ थी। बिल्कुल। तो यहाँ आकर तस्वीर मुकम्मल होती है और सूरा का अंत सिर्फ तसल्ली और याद दहानी पर नहीं होता, नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। जैसे अब कहा जा रहा हो कि जब तुम्हें इतनी नेमतें मिली हैं तो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, कि तुम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हो। और इसमें एक कमाल की सिमेट्री है, एक तनासुब है। बिल्कुल, हर हिदायत एक गुजरी हुई नेमत से जुड़ी हुई है। अच्छा, पहली हिदायत क्या है? पहली हिदायत है फअम्मल यतीमा फला तकहर, यानी लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो। क्यों? क्योंकि तुम खुद यतीम थे और हमने तुम्हें सहारा दिया। सही। तुम जानते हो कि यतीमी का एहसास क्या होता है, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसी यतीम पर जुल्म न हो, उसे बेसहारा महसूस न होने दिया जाए। और दूसरी हिदायत? दूसरी हिदायत है वअम्मा साइल फला तनहर, यानी और साइल को न झिड़को। साइल मतलब? यहाँ साइल लफ्ज के दो गहरे मतलब हैं। एक मतलब है वो जो माली मदद मांगने आए, कोई जरूरतमंद। अच्छा, तो ये उस एहसान का जवाब है कि तुम नादार थे और अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया। जी, तो अब अगर कोई जरूरतमंद तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसकी मदद करो या नरमी से माफी मांग लो, पर उसे झिड़क कर उसकी इज्जत नफ्स को मजरू मत करो। और साइल का दूसरा मतलब क्या है? आपने कहा था कि इसके दो मतलब हैं। दूसरा मतलब है वो जो इल्म या दीन की कोई बात पूछने आए। अच्छा, तो ये उस एहसान का जवाब है कि तुम नावाकिफ थे और अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। बिल्कुल। तो अब अगर कोई कुछ पूछने आए, चाहे वो कितना ही नादान या जाहिल क्यों न हो, उसे प्यार और नरमी से जवाब दो, झिड़क कर भगाओ नहीं। कुछ बुजुर्गों ने इसी दूसरे मतलब को ज्यादा अहमियत दी है, क्योंकि ये नावाकिफ राह वाली आयत के फौरन बाद आती है, तो इसका तनासुब ज्यादा मजबूत लगता है। और आखिर में एक ऐसी हिदायत दी गई है जो इन सब को समेट लेती है। जी। व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, यानी और अपने रब की नेमत का इजहार करो। नेमत का इजहार करने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ जुबान से शुक्रिया कहना काफी है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसका मतलब सिर्फ जुबान से शुक्रिया अदा करना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि हर नेमत का शुक्र उसकी नोयत यानी उसकी प्रकृति के हिसाब से अदा करना है। ये एक बहुत वसी हिदायत है जो हमें जिंदगी गुजारने का एक तरीका सिखाती है। मिसाल के तौर पर, अगर नबूवत की नेमत मिली है तो उसका इजहार और शुक्र दावत और तबलीग करके होगा। अगर कुरान जैसी रहनुमाई की नेमत मिली है तो उसका शुक्र उसे लोगों तक पहुंचाकर होगा। हिदायत की नेमत का शुक्र भटके हुओं को रास्ता दिखाकर अदा होगा। और इसी तरह अल्लाह ने यतीमी में सहारा दिया तो यतीमों का सहारा बनकर, और नादारी से निकाला तो जरूरतमंदों की मदद करके उस नेमत का इजहार किया जाए। ये अपनी हर नेमत को दूसरों के लिए फायदेमंद बनाने का पैगाम है। बिल्कुल। तो ये थी सूरह अज़्ज़ुहा की कहानी, एक गहरी परेशानी और खामोशी के लम्हे से शुरू होकर भविष्य की रोशन उम्मीदों, गुजरे हुए एहसानात की याद, और आखिर में उन नेमतों को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पर खत्म होती है। ये सिर्फ एक पैगाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में उम्मीद, सब्र और शुक्रगुजारी का एक मुकम्मल नजरिया है। और आखिर में एक सोचने वाली बात जो इस पूरी गुफ्तगू से उभरती है वो ये है कि अपने रब की नेमत का इजहार करो वाली हिदायत हमें सिखाती है कि किसी भी नेमत को पाने का सबसे अच्छा शुक्राना शायद यही है कि हम उसी तरह की नेमत दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बन जाए। अगर इल्म मिला है तो उसे बांटना, अगर दौलत मिली है तो जरूरतमंद की मदद करना, अगर कभी मुश्किल वक्त से निकलकर सुकून मिला है तो किसी परेशान हाल को सहारा देना। खैर।